Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are fine. May Allah bless you and your families. Okay, so today our topic is present perfect tense passive voice. Do you know about the difference between active and passive voice? Okay, let me share with you the very simple definition. All the sentences in which the subject is active called active sentences, and if the subject is dissective or behind the curtain or hidden, it is called passive sentence. Today present perfect tense is our topic. Let's see the definition of present perfect tense passive voice. Present perfect tense. Present perfect tense describes an action happening in past up to the present. It indicates a link between the present and the past. It shows the completion of work in present, but if subject is hidden in it, it is called passive voice. यानी perfect tense वो होते हैं जिनमें हाल में कोई काम मुकम्मल होना जाहिर हो, और passive कौन से होते हैं जिसमें subject जो है वो छुपा हुआ हो, called passive sentence. लेकिन इस present perfect tense का ताल्लुक माजी के साथ भी. For example, I have visited Murray. Now see the passive of this. Murray has been visited by me. Clear? Difference between active and passive. In all active sentences, the subject is active. You can see it and find it out easily. But in passive sentences, subject is hidden or behind the screen. You can guess it, which is our subject. For example, he has written a letter. एक example आपके सामने आ रही है कि he has written a letter. In this sentence, he is our subject. यानी active voice sentence है, इसमें हमारा subject हमें नजर आ रहा है. You can easily find him out. It is an active sentence. Clear? And look at the example of this active voice sentence. How to make it passive. Now this is a passive sentence of same sentence. A letter has been written by him. In this sentence, letter is our subject. अब यहाँ पे हमने अपने letter को जो पहले sentence active voice में object था उसको हमने अपना subject बना लिया. Has been एक helping verb add कर दिया. Written third form वैसे की वैसे रही. By him. अब he जब object की जगह जाएगा तो objective form में आ जाएगा. In this regard, you must know about the list of pronouns, which tells you about the forms of these pronouns. तो यहाँ अब subject in this sentence, letters are subject here, which is in fact our object, जो असल में हमारा active voice में object था, and him is our subject, which is an object here, और him जो active voice में he की शक्ल में हमारा subject था, अब वो हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है बिकॉज ऑफ पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम लोग. क्लियर नाउ? डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूलाज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. लुक एट द एक्टिव वॉइस फॉर्मूला एंड पैसिव वॉइस फॉर्मूला. जब हम एक्टिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सेंटेंस सीक्वेंस क्या रखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस एक्टिव वॉइस, you must follow this formula, this sequence: subject, verb and object. Clear? When you are going to translate any passive sentence, तो formula क्या होगा? Change हो जाएगा. Object subject की जगह आ जाएगा और subject object की. लेकिन जब object subject की जगह आएगा तो वो subjective form में लिखा जाएगा. Verb अपनी जगह पे रहेगा, और जब subject object की जगह जाएगा तो वो objective form में लिखा जाएगा. Is it clear? ये formula changing है. Through these formulas we can easily make difference between these two formulas. We can understand the sequence of sentence. तो हम sentence का sequence आसानी से समझ सकते हैं कि active voice में subject verb object की formation होती है, जबकि passive voice के अंदर object verb और subject की formation होती है. But the most important point in this regard is that कि object जब subject की जगह आएगा तो subjective form में लिखा जाएगा, और subject जब object की जगह जाएगा तो वो objective form में लिखा जाएगा. Is it clear? Let's see further. Keep in mind important points to make passives. Passive बनाने के लिए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा. सबसे पहली चीज, मस्ट से फॉर्मूला ऑफ पैसिव इन माइंड.
पैसिव वॉइस के फॉर्मूला को यानी सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस को, फॉर्मेशन को अपने जहन में रखिए। इसमें पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, देन देयर विल बी सब्जेक्ट। देन ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल पैसिव सेंटेंसेस। जब भी पैसिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे उनमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। मेक योर ऑब्जेक्ट योर सब्जेक्ट इन योर सब्जेक्ट योर ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, क्योंकि फॉर्मूला यही है। राइट ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव फॉर्म एंड सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, चूंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो दोनों अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर देंगे। इन रिगार्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूज जंपिंग फॉर्मूला। व्हाट इज जंपिंग फॉर्मूला? इट्स वेरी इजी। आपने एक्टिव वॉइस का सीक्वेंस तो देखा होगा कि इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, देन कॉन्टिन्यूस होता है, देन परफेक्ट होता है, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो दोनों में कॉन्टिन्यूस जहां पे आ रहे हैं, ये जंप लगा के ऊपर वाले पे चले जाते हैं। तो सिंपल कॉन्टिन्यूस जंप लगा के इंडेफिनिट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जंप लगा के परफेक्ट की जगह चले जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड जंपिंग फॉर्मूला। और जो कॉन्टिन्यूस होता है वो सेम एज रहता है, उसमें बीइंग का इजाफा कर देते हैं। बट आवर टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जंप लगा के प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू मेक पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का पैसिव कैसे बनता है? लुक एट दिस एग्जांपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस की एक एग्जांपल मैंने यहां लिखी है, जी टीचर हैज डिलीवर्ड द लेक्चर। ये एक्टिव वॉइस है। टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे सामने है, एक्टिव है, नजर आ रहा है, वी कैन सी इट इजीली। बट हियर इन सेकेंड सेंटेंस विच इज आवर पैसिव सेंटेंस, लुक एट द लेक्चर। जो हमारा पहले सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, वो अब सब्जेक्ट की जगह आ गया। क्लियर? द लेक्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय हिम, और टीचर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम बन गया है। एज टीचर भी लिखा जा सकता था, यहाँ पे नाउन्स को सेम एज भी यूज किया जा सकता है। तो लुक एट दिस, टीचर इज आवर सब्जेक्ट, हैज इज आवर हेल्पिंग वर्ब, डिलीवर्ड इज आवर मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, और द लेक्चर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस। But when we are going to change into passive voice, so look at this. The lecture has been delivered by him. Lecture जो object था active voice में, अब वो subject बन गया passive में। Has been यानी perfect continuous का helping verb perfect में आ गया। Main verb वही रहेगा, delivered ही रहेगा, by him। अब teacher जो है वो him की शक्ल में as an object यहाँ आ गया है। Clear? बेसिकली वो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, और अब ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया है। क्लियर नाउ? सो दिस इज द वे हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सादा जुमलों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? लुक एट द अफर्मेटिव सेंटेंस, योर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू। ये है एक्टिव सेंटेंस पैसिव वॉइस का, सॉरी पैसिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस, सिंपल। इसको नेगेटिव बनाने के लिए देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, योर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू। लेट मी क्लियर वन पॉइंट, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो हैज बीन के बाद नॉट लगा देते हैं। बेसिकली हैज इज आवर मेन हेल्पिंग वर्ब, बीन इज अ सब हेल्पिंग वर्ब। तो हैज मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, यानी हैज बीन के दरमियान में। क्लियर नाउ? तो नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब उठा के शुरू में ले आते हैं, एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, दैट क्वेश्चन मार्क, पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड टू मेक इट इंट्रोगेटिव। if the question sentence is interrogative, put question mark at the end. This is the way how to make negative and interrogative. Clear? Make passive of these activity number 1. एक एक्टिविटी आपको दे रहा हूं, इनके पैसिव बनाने थे, कुछ हमने बना दिए हैं। सो लुक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस आपके लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस है। तो बॉय हैज लर्न द लेसन, बॉय इज आवर सब्जेक्ट, लेसन इज आवर ऑब्जेक्ट। पैसिव में जाके लेसन हमारा सब्जेक्ट बन गया और बॉय हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, फॉर्म वही रही है। Boy has learned the lesson has been learnt by boy. Amjad has won the prize, prize हमारा
ऑब्जेक्ट है, अमजद हमारा सब्जेक्ट है, बट पैसिव में जाके फॉर्मूला चेंज हो जाता है, द प्राइज हैज बीन वॉन बाय हिम. सो रीड दीज एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक पैसिव्स and then practice it also. Okay, now this is an home task for you. Present perfect tense passive voice को translate करना है. So easy. First recognize the sentence, then make a verb in your mind, then translate. Okay, क्या सब तलबा को A grade दिया जा चुका है? Look at this. This is a question sentence. और how can we judge it? Is it active or passive? कैसे judge करेंगे? Look, क्या सब तलबा को ए ग्रेड दिया जा चुका है? तो ग्रेड देने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, किसी ने दिया है लेकिन वो हिडन है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैसिव सेंटेंस. मैले कपड़े धोए जा चुके हैं, धोने वाला मौजूद जाहिरी तौर पे नहीं है. गंदा अंडा फेंका नहीं जा चुका है, सेब खाए जा चुके हैं, मकान में सफेदी की जा चुकी है. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द वोकैबुलरी ओनली. ग्रेड दिए जाना गिवन भी हो सकता है और ग्रांटेड भी हो सकता है. मैले कपड़े डर्टी क्लोथ्स, धोना वॉश. जी, गंदा अंडा रोटन एग. क्लियर. फेंका जाना थ्रो, और उसके हिसाब से आप थर्ड फॉर्म आप खुद बना लेंगे. सेब खाए जा चुके, ईट से ईटन. सफेदी व्हाइट वॉश. क्लियर. नाउ दिस इज योर होम टास्क. यू मस्ट डू इट बाय ऑन योरसेल्फ. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, must follow the important point, techniques how to change into passive. Wish you all the best, beta. Do practice at home because practice makes you perfect. Okay, wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.